So this is basically the continuation lecture of file handling in the Python. So in the previous lecture, what we have covered? What we have covered? हम लोगों ने नंबर 1 how to open the file, ठीक है, in write mode. We have seen the write mode, how to write the data in the file. Clear? Third, we have also seen append mode. What is the difference between write mode and append mode? क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? And what is the default mode of file? सर राइट मोड में ये होता है सर, जब हम कोई वैल्यूज इनपुट करते हैं सर एक बार सर, फिर जब हम लोग दूसरी बार उसमें इनपुट करेंगे सर, तो पुरानी वैल्यूज चली जाएंगी, सिर्फ जो आखिरी में इनपुट की होंगी वो रहेंगी। जबकि अपेंड मोड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सर उसमें जितनी बार भी हम लोग वैल्यूज इनपुट करेंगे सारी रहेंगी। वेरी गुड। इन द राइट मोड सर जो डिफॉल्ट सर, अगर हम लोग कोई सर डिफॉल्ट मोड रीड करेगा, आई अंडरस्टैंड। अगर हम इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इन द राइट मोड द ओल्ड डेटा डज नॉट रिटेन, द ओल्ड डेटा ऑलवेज डिलीट एंड द फाइल विल बी क्रिएटेड इन द फ्रेश मोड। बट इन द append mode the old data is retained, sustained, and apart from that the new data will be also added. Clear? Very good. See, what is the default mode of the file if you do not specify any mode? Sir, read रहेगा R. Very good. Only one person is replying. Yes sir, sir just हाथ दे रहे थे हम लोग के लिए. Only one person is replying. Very good. See, अभी next हम लोग आज पढ़ेंगे रीड मोड। यस सर, रीड मोड, रीड मोड, ठीक सर। रीड मोड, अंडरस्टैंड? रीड मोड का मतलब होता है हाउ टू रिट्रीव। डेफिनेशन लिख लीजिए, हाउ टू रिट्रीव और रीड the data from the file. To read the data from the file means, ठीक है, by write mode we store or write the data into the file. By read mode we fetch. We fetch. Fetch का मतलब होता है निकालना। रिट्रीव का मतलब भी होता है निकालना। We fetch the stored data from the file. This is clear to all of you? जैसे हमने होल ईयर, पूरे साल नोट्स बनाए, मतलब पूरे साल हमने अपने रजिस्टर्स में नोट्स बनाए, नोट्स को लिखा, नोट्स को लिखा। But now in examination period, अब हम लिखेंगे नहीं। What we will do? हम क्या करेंगे? अब हम क्विक रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे। अब उन नोट्स को हम पढ़ेंगे। रिवीजन, रिवीजन का मतलब तो ये हो गया कि हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने पढ़ा
नहीं है. We have नहीं है. only written the notes into the copy. Now Yes, sir. I'm going to read the notes from the copy. All right? Yes, sir. तो अब हम रीडिंग के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं. Now we are जी sir. discussing the concept of reading. Yes, sir. Okay? Yes, sir. For reading the data from the file, what are the available functions? First function, read. This method is used to read the entire data from the file. पूरा डेटा एक साथ रीड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा. For reading data from the file, what are the available functions? एक चीज हमेशा याद रखो, we cannot start the direct practical और direct program. पहले हमारे पास थ्योरी Yes, sir. चाहिए, उसके बाद ही हम सेकेंड फंक्शन रीड एन. रीड एन, ठीक है. Yes, sir. Suppose we want to read some number of characters from the file. From the file. Okay, 1 second. Resume the recording. Okay. Now the second function is read n. n का मतलब होता है suppose we want to read some number of characters from the file. Read का मतलब होता है we are going to read the entire data. Means suppose there are 10 lines. 1 second. I'm just giving the example. Suppose there are 10 lines in the file. Yes, sir. All 10 lines will be fetch from the file and will be display on a screen. मतलब the complete data will be get in the one shot and will be display on screen. बहुत ही ज्यादा यूज Yes, sir. फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शन है. वेट अब रीड n कैरेक्टर्स. तो हमने कहा रीड 5. तो ओनली 5 कैरेक्टर्स विल बी रीड फ्रॉम द फाइल. रिमेनिंग द डेटा विल बी देयर एज इट इज. अंडरस्टैंड? वी विल सी प्रैक्टिकली, डोंट वरी. थर्ड नंबर, रीड line. Read line. This method is used to read a single line at a time. जी sir. At a time. एक समय में एक लाइन ही रीड होगी. जब हम दोबारा फिर इसको यूज करेंगे तो सेकेंड लाइन, मतलब लाइन बाय लाइन एक बार में केवल एक लाइन रीड होगी. ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे. वेट, एक लास्ट फंक्शन है रीड लाइन्स. अक्सर थ्योरी में पूछा जाता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स. अब बताते हैं. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मैथड is used to read all the lines from the file and return the data in the form of list. लिस्ट के फॉर्म में ये डेटा को रिटर्न करता है. ये थे हमारे रीड से रिलेटेड फंक्शंस. अब बीच में एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं. ठीक है, there are two types of. Yes, sir. The number one is text file, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं. The number two is binary file, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड? टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस ये होता है कि डेटा टेक्स्ट फाइल में
हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, लाइक इंग्लिश। समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा स्टोर इन द फाइल इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, दैट इज इंग्लिश। क्लियर? बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Reply everyone. Are you getting? Yes, Yes, sir. sir. Computer does not understand the English. Then Yes, sir. computer translate that English into the binary code. Because computer only understand the binary code that is in the form of zeros and one. All right? Yes. Computer understand machine code or binary code 10101। मान लो ये लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम ये क्या लिखा Yes, है, sir. ठीक है, बट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग। अंडरस्टैंड? तो होता क्या है कि जब हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो इंटरनल सम ट्रांसलेशंस होते हैं। अगर वो ट्रांसलेशन नहीं होंगे देन कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन। हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए। सो सम इंटरनल ट्रांसलेशंस आर टेकिंग प्लेस, देन डेटा कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड। डेटा उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि हम बेसिकली कंप्यूटर को ही अपना डेटा प्रोसेस के लिए देते हैं। बट बाइनरी में क्या होता है, डेटा हमारा ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, मतलब वो फॉर्मेट जो कंप्यूटर रीड कर सकता है। जैसे ही हमने अपना डेटा दिया, इमीडिएटली ये फाइल में जब जाता है तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस नहीं होते और कंप्यूटर को प्रोसेसिंग कम करनी पड़ती है और जल्दी हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाती है, लेकिन हम अपने डेटा को पढ़ नहीं सकते क्योंकि डेटा हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल कैसे बनती है और टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है, तो हम देख रहे हैं। अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? Sir. No, sir. ठीक है, अब ये बताइए कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल बनती कैसे, वो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम रीड वाला कॉन्सेप्ट पूरा कर लें। तो रीड वाला कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट 1 सेकेंड, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले डी ड्राइव, in the D drive, please 1 minute, this recording is very important actually. In the D drive, Python programs and file handling। अब यहां पर हमारे पास 3 फाइल्स बनी हुई हैं। इन तीनों फाइल्स को हम देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो student.txt, इसमें कुछ डेटा है, ठीक है। यहां पर हम ओपन करके तो अपना डेटा देख ही रहे हैं, बट हम चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कसिंग, हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू हमारा डेटा रीड हो और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। आर यू गेटिंग? यहां आकर तो हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हमारा ये डेटा रीड हो और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। अंडरस्टैंड? अब देखो, इसको हमने क्लोज किया, ये फाइल है student.txt। I want to read this file and display all the data in screen। तो यहां पर हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। जहां आपकी समझ में ना आए वहां पूछा भी करिए, फाइल रीड डेमो, ठीक है, यानी कि यहां पर हम रीड मोड, और इसके बाद यहां हमने लिख दिया py।
लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को अपेंड मोड बताया था, वो कवर हो चुका है। थर्ड लेक्चर है फाइल हैंडलिंग का। ओके, सब चीजें एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे सब आ जाएंगी ना। ठीक है, अब हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज, फाइल, ठीक है, F इज इक्वल टू ओपन। कौन सी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं? स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। कौन से मोड में ओपन करना चाहते हैं? सर रीड में करेंगे। व्हाट इज द, अगेन कुछ स्टूडेंट ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है, व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ द फाइल? रीड। डिफॉल्ट मोड होता है रीड। 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 तो अगर हम यहां पर आर ना भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड, हाउ टू प्रिंट द मोड ऑफ द फाइल? F डॉट मोड। इससे क्या होगा? सर ये फाइल का मोड मोड बताएगा। डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, जी बहुत सर। ध्यान से देखो। CMD, D drive. In the D drive, there is a Python program folder. Python program folder. Okay. Inside the Python program folder, there is one more directory called file handling CBSC. फाइल हैंडलिंग CBSC। और अभी हमने करंट फाइल कौन सी बनाई है? student.txt। नहीं, प्रोग्राम की फाइल कौन सी बनाई है? फाइल डेमो 3 है। फाइल रीड। फाइल डेमो सर। फाइल रीड डॉट पी वाई। इंटर। क्या डिस्प्ले हुआ? यहां देखो छोटा सा आर आ रहा है, देखा? जी सर। सर मोड डिस्प्ले हो रहा है फाइल का। मतलब ये है कि फाइल का मोड इस टाइम रीड है। फाइल का मोड क्या है? रीड। अब अगर हम ये मोड हटा दें तो अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन द डिफॉल्ट मोड ऑफ द फाइल इज ऑल्सो रीड मोड। सेव इट। तो अगर हम इसको रन करें, थोड़ा सा मैटर भी लिख देते हैं, द मोड ऑफ द फाइल इज, ठीक है, तो कौन सा मोड डिस्प्ले होगा? रीड। R. Are you getting the R? Are you getting the R? Yes sir. Good. Very Yes sir. यस सर। सर एक बार फिर समझाइए, समझ नहीं आया सर। ठीक है। हमने बताया कि अगर हम कोई मोड फाइल के साथ ना लिखें तो डिफॉल्ट मोड रीड होता है। लास्ट लेक्चर में आप थे? यस सर। लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की गई थी। अगर हम फाइल का मोड ना लिखें तो डिफॉल्ट मोड होता है रीड। क्या होता है? हाँ सर, हाँ से याद आ गया। ये देखो रीड। यस सर। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कमांड नहीं हो पाएगी। बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं, ठीक है? अब देखो, जी सर। यहां पर हम वापस से इसको रीड कर दें, ठीक है? नाउ डेटा इज इक्वल टू F डॉट रीड। ये फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन मैं लिख भी रहा हूं साथ में, दिस फंक्शन विल रीड द कंप्लीट data from the file and store into data variable जो यहां पर हमने दिया है। इट मे बी ऑफ एनी वेरिएबल, मतलब सारा डेटा रीड करके ये डेटा में स्टोर कर देगा। डेटा कोई भी हो सकता है, इट जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है? इट मे बी ऑफ एनी वेरिएबल। सर तो इसके लिए क्या हमें कोई वेरिएबल डिफाइन भी करना पड़ेगा? डिफाइन जावा इसमें नहीं होता है। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस सर। कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करना पड़ता है, जैसे ही हम यूज करते हैं ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है।
print the complete data of student file is, किसमें है, किसमें है, डेटा में। तो हमने डेटा को डिस्प्ले कर लिया, तभी तो हम देख पाएंगे कि क्या डेटा डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद यहां पर f डॉट क्लोज, तो सारा डेटा फाइल से रीड होकर निकल कर डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा और हमने उस डेटा को डिस्प्ले कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? आराम से सोच कर बताओ। सर जो भी student.txt फाइल में लिखा होगा वही डिस्प्ले होगा। वही डिस्प्ले होगा। वेरी गुड। तो उसमें क्या लिखा हुआ है एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है। जी सर। तो यही Yes, sir. यही डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए। गुड। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस एंड सेव नाउ। यस सर, ठीक है। यस यस सर। सर। आराम से देख लो, मैं जल्दी में कोई चीज पढ़ाता भी नहीं हूं, आराम से देख लो। टेक योर प्रॉपर सेटिस्फैक्शन, देन आई कैन मूव। यस सर। ऑल राइट। यस सर। Okay. यस सर। Now, I want to read, one second, यस सर। just a moment. Python programs. Do you have ever heard about relative path and absolute path? कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बस थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं फाइल हैंडलिंग ऐसी पढ़ा दूंगा कि फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा कोऑपरेशन आई रिक्वायर्ड। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम्स, और हमें language.txt रीड करनी है। उसमें ये सारा डेटा है। Within 10 minutes the class, the meeting will be over. हमें language.txt रीड करनी है। क्या करेंगे? I want to read this file. अब यहाँ आ जाओ, क्या करेंगे? यहाँ सर तो ओपन open करेंगे पे पहले। लगा देंगे सर। बस language.txt कर देंगे सर। ये स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज जगह पर बस सर। अभी हम जावा की बुक पढ़ रहे थे, अब हम पाइथन की बुक पढ़ने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद जी सर। हम C++ की बुक पढ़ लेंगे। तो जो बुक पढ़नी है उसको ओपन कर लो। क्यों भैया? जी सर। यस सर। यस सर। जो बुक आपको पढ़नी है वो ओपन कर लो। यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर। आई वॉन्ट टू रीड यस सर। mp.txt। What's the problem, man? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन यहां पर प्लीज वन थिंग हैव यू नोटिस्ड, in every data before that the complete data of a student file, please notice। यस सर। क्या ये सही है? यहां भी यही आ रहा है, यहां भी यही आ रहा है। ध्यान, सर ये हम लोग को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी तो प्रॉब्लम है ना, जी सर। तो तुमको ये चीज नोटिस भी तो करनी है साथ साथ। क्यों? यस सर। क्या ये स्टूडेंट फाइल है जानवी? नो नो सर। सर। तो फिर नहीं सर। तो व्हाट चेंजेस वी रिक्वायर्ड? क्या करेंगे? सर प्रिंट फंक्शन। क्या करेंगे? तो यहाँ पे कर देंगे कंप्लीट ऑफ द फाइल इज, तो उसके नाम की जगह से कर देंगे। तो जब हम emp.txt लिखें तो यहां पर हम emp लिख दें, जब student.txt लिखें तो यहां पर हम स्टूडेंट लिख दें। सर
एक मेरे पास उससे अच्छा आइडिया है उससे अच्छा आइडिया बताओ यार, ये अच्छा आइडिया नहीं। सर। हाँ गुड। सर अगर मान लीजिए सर जैसे कोई फाइल है सर, उसको हम लोग n मान लें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग स्क्रीन पे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो। यस सर। अगर हम धीरे से f डॉट नेम कर दें, कॉमा कॉमा, ये कैसी रही? अब इसको सेव कर लिया, बढ़िया रहे। जो फाइल यहां ओपन होगी, चाहे वो emp सर उसका उसी नाम का तो नाम यहाँ आ आ जाएगा। जाएगा। का नाम आएगा। जी सर। let me show you. यस सर। Are you getting? This is called यस सर। Yes, sir. proper and the professional method. ठीक है, अब देखो, ऑल राइट, कौन सी फाइल हम लोग ओपन करने जा रहे हैं? Student. Student. स्टूडेंट। ऑल राइट, यस सर। डन। तो ये सर अगर सर ये जो txt लिखा आ रहा है सर, ये ना है तो कैसे होगा? क्या चिन्ह है? स्टूडेंट डॉट extension लिख कर txt क्या आ आ रहा रहा है, हाँ हाँ, स्टूडेंट रहे तो कैसे होगा वो? तो हम स्प्लिट करके हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नेम तो यही है ना, तो आई वांट टू डिस्प्ले द कंप्लीट नेम, तो वो स्प्लिटिंग करके हटाया जा सकता है, ठीक है, डॉट से स्प्लिट अच्छा। करके, ठीक है। वो अभी डिस्कशन का मामला नहीं है, ठीक है। अभी ये देखो कि फाइल को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा, जी सर। अब ये हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद में आई वॉन्ट टू शेयर दिस प्रोग्राम इन योर ग्रुप, क्योंकि इसी में हम चेंजेस करेंगे। ओके, सी, हम लोगों ने कौन सा मेथड अभी पढ़ा है? f डॉट रीड। रीड, ओके। अब देखो, ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो student.txt है, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडे। एक्चुअली आज की रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, सो चल रही है, ओके। और क्लास आपकी 4 मिनट में ओवर हो जाएगी, उसके बाद आपको रीज्वाइन करना है। आधा घंटा हुआ है अभी क्लास शुरू हुए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जी सर। student.txt में है क्या, पहले देख लो। वेट वेट वेट, student.txt में नाम है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, ये जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? सर 4। गुड, Sir, 4. 4, वेरी गुड। अब देखो, आई डोंट वांट टू डिस्प्ले द कंप्लीट डेटा, आई ओनली वांट टू डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स, ओके। आई वांट टू डिस्प्ले ओनली हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 4। और हम यहां पर क्या पास कर देंगे? 4। नाउ ओ हाँ ठीक है सर। आर यू ऑल गेटिंग? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड। हम लोग थियोरेटिकल सेक्शन में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। सर एक बार 7 कैरेक्टर्स पास कीजिए। हाँ, कर रहे हैं। देखो, हमने ये वाला फंक्शन पढ़ लिया, Read. यस ये सर। फास्ट। जी यस Yes, सर। sir. हम ये वाला फंक्शन भी पढ़ लिया। यस सर पढ़ आराम से लिया। देखो, ये हमारे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, अभी तुम्हारे सामने बनाए हैं, ठीक है। यस अब सर। 7, ये बताओ कि क्या ये 7 है? सर कैरेक्टर्स तो इसमें 6 हैं। हाँ, वही पर पूछ सर रहे हैं। शायद A character space का.
नहीं नहीं लाइन नहीं ब्रेक का नहीं नहीं नहीं। सर लाइन लाइन ब्रेक ब्रेक कौन बताएगा इसका सही आंसर? लाइन ब्रेक 1 2 4 5 6 \n is also a character कैरेक्टर used to ओके सर change the line. इन द लाइन Understand? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर Okay, okay. This is clear to all of you? यस सर सर तभी हमने सोचा था कि क्या होगा अगर कोई सोचने ज्यादा से ही पास प्रोग्रामिंग में करेंगे इम्प्रूवमेंट होते हैं। यस सर जो आदमी सिर्फ क्लास के फ्लो में चलता है वो उतना ही सीख पाता है जितना टीचर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से भी सोचो। यहां नहीं सोचो, घर पे सोचो। यस सर तो यहाँ पे बाइट्स का मतलब कैरेक्टर हुआ। हाँ सर बुक में लिखा है क्योंकि दिस रीड द एन नंबर ऑफ लाइक बाइट्स, जितना हम लोग बाइट्स लेंगे। हमने जो तो अपने सर यहाँ पे बाइट्स का मतलब कैरेक्टर यहाँ हुआ। पर कैरेक्टर हुआ, बिकॉज कैरेक्टर का जो स्टोरेज यूनिट होता है वो बाइट होता है। यहाँ पर जो डेटा Yes, होता sir. है वो बिट्स एंड बाइट में स्टोर होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी डेटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। लाइक लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स, solid is measured in kilograms, like data in the computer is measured in the bits and bytes, are the smallest units. All right? Yes, sir. Yes, तो sir. यही मतलब, अब जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक थ्योरी समझ में नहीं आती। ओके, नाउ ओके, व्हाट विल हैपन? सर ये एक लाइन रीड कर देगा तो यानी कि किसका नाम आएगा? सिर्फ सर अनीस आएगा आपका सेफ सेफ। यस सर ऑल राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ सर अगर मान ली सर सिर्फ हमें कोई रैंडम लाइन सर मतलब दिखानी हो सर सर जैसे ये जो पहली लाइन थी सर इसने वो दिखाई, हम चाह रहे कोई बीच की दिखाई या लास्ट की दिखाए। अभी दिखा देंगे, ठीक है, अभी दिखाते हैं, ठीक है। ओके सर। कुछ फंक्शंस, यस सर देखो एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कुछ रेडीमेड फंक्शंस, अच्छा सुनो, तुम कब हम रेडीमेड शर्ट जब देखते हैं तो हमको एज इट इज वो शर्ट वैसी ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है जैसी वो है। से यस और नो? यस सर सपोज व्हाइट यस सर। उसने हमें दिखाई, हमने कहा आधी व्हाइट हो आधी ब्लैक हो, वो कहेगा सर ये कॉम्बिनेशन आज तक कभी हमारी कंपनी में नहीं बना। कभी देखी आपने? हाफ शर्ट ब्लैक हाफ शर्ट व्हाइट, नॉट अवेलेबल ना, बट आई वांट दैट शर्ट। सर कब चाहिए? हमें वैसी शर्ट चाहिए, हाफ व्हाइट। सर तब तो वो तो सर उसमें तब तो वो चाहिए, हम टेलर ला ही के कर देंगे। पाएगा। उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। यस सर वेरी डिजाइन। गुड, होप यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर द फंक्शन, यस सर इनको हमें एज इट इज यूज करना पड़ेगा, बट अगर हम कुछ डिफरेंट और एडिशनल चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। होप यू अंडरस्टैंड? ओके, यस सर यस सर। अभी करते हैं, Yes. ठीक है। रीड लाइन हो गया, रीड लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर सर अगर सर रीड लाइन के सर ये जो ब्रैकेट है सर इसमें 2 इनपुट करें हम तो वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा। ओ अच्छा ठीक है। ये देखो, टीचर को इमीडिएटली रिप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स की। आई ट्राई टू ओ इमीडिएटली, हाँ सर। आई ट्राई, मैं यस सर कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी रिप्लाई करूं, और जो रिप्लाई कर रहा हूं दैट शुड बी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ऑल्सो, है ना। अब देखो यस सर यहां पर आ जाओ वापस। अब देखो, ध्यान से देखना भैया, यहां पर हमने कहा ए, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ध्यान से।
Yes, sir. अब क्या होगा? एक लाइन रीड हुई, ए में प्रिंट, हाँ सर। सेकेंड लाइन रीड होकर Yes, sir. बी में प्रिंट होगी। तो हाउ मेनी लाइंस? में print. सर 2. सर 2। Sir, 2. 2 लाइन है ना? Yes, sir. आगे समझ में आया? Yes, sir. यस सर। कुछ नोटिस किया? कुछ नोटिस करा? नहीं किया। अब सर स्पेसेस extra line, ज्यादा, blank line print हो रही हैं? है। सर ब्लैंक सर लाइन एक ज्यादा आ रही blank हैं। line, क्या ये सही है या गलत है? सर हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो सही है, और अगर बिना स्पेसिंग के चाहिए तो गलत गुड है। आंसर। लेकिन जैसा डेटा स्टोर हुआ है वैसे ही तो स्टोर डिस्प्ले होना चाहिए, ये भी तो है। यस यस सर। क्या सर। डेटा में गैप है? No. नहीं नो सर। सर। हमारे डेटा में भी गैप नहीं है। तो एक मिनट, जरा सा हम अपनी तो अब इसको सही कैसे किया जाए, ध्यान से देखना। यस सर। लेट मी चेक। यस सर, अब सही है। करेक्ट। यस सर। आपको सही करना Yes, आना sir. चाहिए। आप नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए, सपोज अ क्लाइंट कहता है कि हमको ऐसा डिस्प्ले चाहिए, सर हम ऐसा दे देंगे। अगर क्लाइंट इस पे सेटिस्फाई है देन नो प्रॉब्लम। ओके। अब बस बोलिए। सर अगर मान लीजिए सर इस प्रोग्राम में से सर हम लोग बीच में से बी हटा दें सर, तो सी में भी सर सेकेंडरी वाला नाम सर वो डिस्प्ले कराएगा, ना कि थर्ड वाला। अच्छा, यस यस। अब देखो, एक मिनट, मेरी हेल्प करो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। राइट ए प्रोग्राम to display the first 4 line of data. First 4 line of data. Okay? और हमारी फाइल में यस सर। 1 2 3 4, एक मिनट, एक डेटा हम राइट कर लेते हैं उसके अंदर। रमन एंड यश एंड रोहन। अभी कितनी लाइन्स हैं इसमें? 1 2 और 8। 3 4 5 6 7 8. Yes, I want to write, Yes, I want to sir. display 1 2 3 5 lines. कितनी लाइन्स हमें डिस्प्ले करनी है? फर्स्ट 5 सर लाइन। ए 5। फर्स्ट 5 लाइन। तो क्या ये तरीका सही है? ए बी सी डी। सर फॉर लूप लगा दिए हो जाएगा सर काम? लूप लॉक कर सकते हैं। नो सर। कोई बताएगा? I want to display the first 5 lines of the data from a student dot Read only. एक मिनट C for I in range 1,6, data is equal to f dot read line print data
comma end is equal to blank space. Okay. All right. And I just want to, is it right or wrong? Sir, right. Yes, sir. I want to display a serial number along with Yes, data. sir. Rakshit, are you there? Yes, I sir. want to display a serial number. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हम लोग एक तरीका और भी तो कर सकते हैं सर. हाँ बताओ. सर डाटा इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस 5. हमें 5 रीड करना है, रीड लाइंस 5 करके कर दें तो 5 लाइन रीड होंगी. Is it right, Janvi? Sir, please. No, sir. नहीं सर, 5 ये गलत है। characters print होंगे. रीड लाइंस. हाँ सर। समझे रक्षित? रीड लाइंस करेंगे तो आज करेक्ट. सर एक बार ये प्रोग्राम सर ग्रुप पे भेज दीजिए. ये वाला यस सर. मैं सारे भेज रहा हूँ अगर आप Yes, ध्यान sir. दें तो. यस सर, आप भेज रहे हैं. ओके डन. अच्छा सर अगर हम लोग Okay, एक बार thank you, देखेंगे f डॉट रीड लाइंस 5 करके देखें तो सर अगर देखें सर 5 ही लाइन होंगी शायद. हर लाइन का 5 यार करके वो रीड होगा. कैरेक्टर. सर रीड लाइंस, अगर रीड लाइन नहीं सर रीड लाइंस. हाँ रीड लाइन भैया, रीड लाइन ही लिखा हुआ है. सर रीड लाइंस एस एस. तो अभी डिस्कस ही नहीं किया ना, अभी करेंगे उसको डिस्कस. उसका पर्पस वो दूसरा. एक साथ सब प्रिंट कर देगा. वेट. ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा. सर इससे सिर्फ 4th लाइन रीड होगी. हर लाइन के 4 कैरेक्टर रीड होंगे. जी सर. Yes, sir. हर लाइन के 4 कैरेक्टर रीड होंगे. प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. यस सर. ठीक है, वो थोड़ा लाइन का चेंजेस है. सर ठीक है. ओके, क्योंकि जब वो बैकस्लैश n आया तो उसको भी उसने रीड कर लिया. ठीक है, तो अब देखो इतना तो समझ में आ गया सबके. अब यहां पर अगर हम, क्योंकि हमें रीड क्लोज करना है आज, डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स. क्या आउटपुट आएगा? आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई इसका आंसर बताए. सर मेरे ख्याल से ये सब सर सब तो प्रिंट करेगा सब, बट डेटा का टाइप भी बताएगा. क्या Yes, sir. STR. क्या आएगा? STR. सर STR बताएगा. अब 1 मिनट के लिए सोचो, आराम से सोचो ठंडे दिमाग से. अगर हम आज की क्लास मिस कर देते तो ये सारे सिनेरियोज हमारे मिस हो जाते. सर हाँ, लिस्ट करेगा. सब लोग ध्यान से देखो. ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. कुछ लोगों ने ज्वाइन देर से किया था. सर आपने थ्योरी में लिखा था. अब इसको पढ़ो, यस सर लिस्ट होगा. आराम से पढ़ो पहले इसको.
Yes, sir. ऑलराइट, देखो लैंग्वेज Yes, कितनी sir. easy है। Yes, sir. थ्री इडियट तुमने फिल्म देखी है, बहुत सारी ऐसी बुक भी तो हैं जिसमें सर इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। कहता है ना, एक जगह पर उसका एक डायलॉग है, Yes, sir. तो जरूरी Yes, नहीं sir. कि आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज से ही चीजों को सीखें, आसान लैंग्वेज हमने खुद बनाई है। ठीक है, अभी आपके सामने। ओके सी, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम, अच्छा डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों सात्विक, डेटा क्यों नहीं आ रहा है? Sir, because हम लोग डेटा प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। हाँ, डेटा को Yes, डिस्प्ले sir. ना कराया। अब देखो, Sir, अब आएगा। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? दिस इज माई ये डेटा, लिस्ट के फॉर्म में। दिस इज माई डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। List. क्लियर? हम चाहते हैं, Yes, sir. ओके, हम चाहते हैं कि इस डेटा को प्रॉपर वे में डिस्प्ले करें। प्रॉपर वे में मतलब अनीस, फिर माहिरा, फिर सीमाब, फिर रिजवान, फिर माही, ऐसे अलग अलग डेटा को डिस्प्ले करें। देन Yes, sir. मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या ऐसा लूप कभी आपने देखा है? जैसे सर देखा Yes, तो sir. था पर कुछ याद मेंबरशिप, नहीं आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. Membership operators. देखो हमारा सारा डेटा कहाँ है, डेटा नाम के वेरिएबल में है या नहीं? Variable. Yes, sir. Yes, किस sir. फॉर्मेट Yes, में है? sir. अनीस, लिस्ट के फॉर्मेट में, और यहां पर एक बैक स्लैश Yes, एन है। एक सेकेंड, देखो, हाँ, अब रुको, इसको थोड़ा सिंगल कोट्स में ले लेते हैं, कॉमा, इसके बाद क्या है माहिरा, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। एंड बैक स्लैश एन, क्या हुआ? डेटा ऐसा है, yes, sir. तो हमने कहा आई इन डेटा, मतलब डेटा से पहला डेटा निकालकर आई में लाओ। तो आई में क्या आएगा? सर Anis. अनीस पहले आएगा। पहले अनीस सबसे आएगा, पहले सर अनीस सर आएगा। वेट, और उसके बाद ये बैक स्लैश एन जो होता है वो नॉन प्रिंटेबल होता है, तो बैक स्लैश एन की वजह से यहां बैक स्लैश एन नहीं आएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी और कर्सर तुम्हारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि बैक स्लैश एन अच्छा सर। लाइन को ब्रेक करता है। ओके, अब जब हम दोबारा डेटा में से आई निकालेंगे तो फिर माहिरा रीड होकर के आई में आ जाएगा। सही यस और नो? जी सर। देन Yes, sir. Yes. will be print on next line. All right, जैसा हमने Yes, sir. किया है वैसा आना चाहिए। अब वेट,
ऑल राइट, यस सर। स्पेसेस तो हम कंट्रोल कर लेंगे, यस सर। वो तो हमें मालूम है ना। रीड इज ओवर। डू यू हैव द टाइम टू डिस्कस द एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव, या इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें? जैसा आपको सही लगे। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में 3 चीजें डिस्कस होंगी। अच्छा सर। मैं बताता हूं क्या, वेट। पाथ में रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, इसी में हमें रॉ स्ट्रिंग डिस्कस करना है, ठीक है? इसी में डिस्कस होगी। तो क्या Yes, sir. टॉपिक को आज टच किया जाए या नेक्स्ट क्लास पे डाल दें? नेक्स्ट क्लास पे कर लें? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ओके सर। Yes, sir. टाइम है ओके ना? सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक चीज देख कर बताना, अभी देख कर बताओ, कोई जाएगा नहीं कहीं। वेट, Yes, sir. अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप है।